السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، آج کی اس نشست میں میں ابو سعید عبدالرازق آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں. ہم نے اپنی پچھلی نشست میں الحمدللہ پاسٹ ٹینس مکمل کر لی تھی، یعنی ماضی مطلق جسے ہم کہتے ہیں، اس کو پاسٹ ٹینس، پاسٹ سمپل ٹینس کہا جاتا ہے، وہ ہم نے الحمدللہ پچھلی دفعہ پڑھ لی تھی. چلیے آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی آج کے سامنے پریزنٹ سمپل، مضارع یا حال، خاص طور سے مطلق والا حال، وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جسے انگریزی میں پریزنٹ سمپل کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ سمپل کے تعلق سے مزید باتیں کروں، ایک بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے پریزنٹ سمپل کے استعمالات. پریزنٹ سمپل عام طور پر دو حالات میں استعمال ہوتا ہے. ایک وہ حالت جب آپ کسی ایسی چیز کی بابت بات کر رہے ہوں جو عالمی طور پر سچ ہو، جو عالمی طور پر تسلیم شدہ ہو. ایسی کسی چیز کی بابت اگر آپ بات کر رہے ہوں تو ایسے مواقع پر آپ پریزنٹ سمپل کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کی دوسری یوسیج یا پھر اس کا دوسرا استعمال یہ ہوا کہ آپ پریزنٹ سمپل کو اس وقت یوز کرتے ہو جب آپ اپنے تئیں، اپنے تعلق سے کسی ایسی چیز کو بتانا چاہتے ہو جو آپ عادتاً کرتے ہو. کوئی چیز ہے جس کی آپ کو عادت ہے، کوئی چیز ہے جو آپ عام طور پر کرتے ہو، یا کوئی چیز ہے جو آپ ہمیشہ ہی کرتے ہو. ایسی چیزوں کو بتانے کے لیے بھی پریزنٹ سمپل کا استعمال ہوتا ہے. پریزنٹ سمپل، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنے بھی ہم افعال سیکھیں گے یا جتنے بھی زمانے سیکھیں گے، زمانوں کی بات کروں میں، جتنے بھی زمانے سیکھیں گے، ماضی میں ہو، مضارع میں ہو یا پھر مستقبل میں ہو، ان سب میں یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو فریم ورک ہے، یہ ہو بہو وہی رہے گا، یہ نہیں بدلتا. یعنی سب سے پہلے آپ کے سبجیکٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے. یہ تین جو ہے بنیادی کڑیاں ہیں، یا بنیادی پلرز کہہ لیں، آپ عمود کہہ لیں. یہ تینوں کی تینوں بنیادی عمود ہیں. ان کے اطراف باقی چیزیں جو ہے گھومتی پھرتی رہتی ہیں. لہذا یہاں بھی وہی ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ کا ضمیر آئے گا، یا پھر اس جگہ پر آپ کو اگر کوئی ناؤن لانا ہو، کوئی اسم لانا ہو، تو آپ وہ لے آئیں گے. میں مثالیں چند آپ کے سامنے رکھتا چلوں. اچھا، مثالوں سے پہلے پریزنٹ سمپل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پاسٹ سمپل سے اس حساب سے الگ ہے کہ ہم نے پاسٹ سمپل میں دیکھا تھا کہ جب ہم نے ساری ضمائر دیکھی، آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، ان تمام ضمائر میں ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ سب کے سب ضمیروں کے لیے ہم نے پاسٹ ٹینس ایک ہی استعمال کیا. اس کا جو فعل ہوتا ہے وہ ایک ہی استعمال کیا ہم نے. یعنی آئی وینٹ، یا پھر ہی سلیپٹ، یا پھر شی بروک. یہ جو ہم نے دیکھا سب میں ایک ہی کا استعمال تھا اور ایک ہی طریقے کا استعمال تھا. یہاں پریزنٹ سمپل میں ہوگا یہ کہ آپ آئی، وی، یو، دے، ان چاروں کے لیے ایک الگ قسم کا صیغہ استعمال کرو گے فعل کا. وہیں ہی، شی اور اٹ کے لیے الگ قسم کا صیغہ استعمال کرو گے. یعنی جب آپ مثبت جملے بنا رہے ہوں، ایسی صورت میں
आप आई वी यू दे में से किसी एक का या चारों ही का या फिर दो ही का इस्तेमाल कर रहे हों, उन सूरतों में, अब भले ही आप, मैंने कहा ना, एक ही का इस्तेमाल करें, चाहे आई कह लें, चाहे वी कह लें, चाहे यू कह लें, चाहे दे कह लें, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल जब आप करोगे तो जो वर्ब लगेगा वो तो प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्म होता है या इन्फिनेटिव फॉर्म जिसे कहते हैं वो होता है, वो लगेगा। यानी अगर आप कहें कि एक वर्ब की 3 अलग अलग टुकड़ियां बनाई जा सकती हैं, 3 अलग अलग कॉलम्स बनाए जा सकते हैं, तो एक कॉलम तो होगा इन्फिनेटिव का, दूसरा कॉलम होगा पास्ट सिंपल का, तीसरा कॉलम होगा पास्ट पार्टिसिपल का। ठीक है, तो ये जो पहला कॉलम जो सिंपल वाला कॉलम कहलाता है या इन्फिनेटिव वाला कॉलम कहलाता है, इस कॉलम का इस्तेमाल आप करोगे। मिसालें मैं आपके सामने रखूं, बी, वॉज, वर एंड बीन, या फिर इसी तरीके से वर्क, वर्कड, वर्कड, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। उसी हिसाब से शेक, शुक, शेकन, टेक, टुक, टेकन, रन, रैन, रन, बिगिन, बिगैन, बिगन। तो ये जो इस तरीके से होते हैं, इसमें पहला कॉलम आप प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करोगे। ये जो कॉलम्स मैंने अभी आपके सामने 2-3 मिसालों के जरिए से रखे, इस तरह के कॉलम्स की बेशुमार मिसालें और बेशुमार ऐसे अफआल आपको गूगल पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप वहां से लेकर के प्रिंट कर लें, लिख लें, और फिर उनके मानी भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आने लगेंगे। हाँ, ये जरूर है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले अय्याम में ये जो मैंने अफआल अभी 2-4 करके गिनाए हैं, इस तरह के सैकड़ों, कोशिश करूंगा कि सैकड़ों अफआल, इस तरह के वर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं, वो आपके सामने ले आऊं और वो एक एक उसका इस्तेमाल मिसालों के जरिए से वाज़ह करता जाऊं। ये भी इंशाअल्लाह ताला मेरे जिम्मे है। मैं प्लान करता हूं कि ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं बिइज़्निल्लाह। चलिए, तो मैं बता रहा था कि प्रेजेंट सिंपल का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जो 3 कॉलम्स हैं उनमें से आप पहला कॉलम यहां पर इस्तेमाल करोगे। हाँ, ये जो पहला कॉलम है, मिसाल के तौर पर रन हुआ, शेक हुआ, टेक हुआ, गो हुआ, या फिर पे हुआ, प्रे हुआ, स्लीप हुआ, ये सब ऐसे ही आप इस्तेमाल करोगे। आईएनजी नहीं आएगा इसमें, और इसके साथ कोई और चीज जुड़कर नहीं आएगी। मैं मिसाल दूं उसकी, वी ईट 3 times a day, we eat 3 times a day, EAT, eat उसका पास्ट टेंस एट होता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल उसका ईटन होता है। ना हम ईटन इस्तेमाल करते हैं यहां पर, ना एट इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ईट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो और वो ईट का लफ्ज भी जो है बगैर आईएनजी के होगा एक तो, और दूसरे उसके साथ कोई और चीज जुड़कर भी नहीं होगी, उसको लगी हुई कोई चीज नहीं होगी। यानी आप ईट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि ईट कहेंगे। ठीक है ना, वर्क्स नहीं कहेंगे, वर्क कहेंगे। यू नो, men work 5 days a week, 5 days a week। तो हमने क्या कहा, वर्क कहा, people work 5 days a week। तो इस तरीके की मिसालें जब आप बनाने लगे तो इन्फिनेटिव कॉलम इस्तेमाल होगा। कब तक? जब तक आप आई, वी, यू, दे वाले जुमले बना रहे हो। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने अभी 2 मिसालें रखी, एक और मिसाल आपके सामने रखूं, मुस्लिम्स प्रे, मुस्लिम्स प्रे, मुस्लिम्स का मतलब they, ठीक है ना, उसको अगर आप हटा करके जमीर लाते हैं तो कौन सी जमीर लाएंगे, they। ठीक है, मुस्लिम्स प्रे 5 times a day, 5 times a day। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब जब आप इसको नेगेटिव में ले जाकर इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसको अगर आप नेगेटिव में ले जाकर इस्तेमाल कर, नहीं, नेगेटिव से पहले मैं आपके सामने रखूंगा आई, वी, यू, दे, तो मैंने आपके सामने रख दिया। ही, शी, इट का इस्तेमाल मैं आपके सामने रखूं। मैंने कहा था कि ही, शी, इट के लिए अलग किस्म का सेगा इस्तेमाल होता है। यहां होता यह है कि आम तौर पर जो ये वर्ब मैंने अभी बताए हैं, 2-4 वर्ब जो मैंने गिनाए हैं, उनके आखिर में एक एस या ई एस, कुछ केसेस में एस और कुछ केसेस में ई एस जुड़ता चला जाता है, और उसी हिसाब से आप जुमले फिर बनाते हो। मिसाल के तौर पर, ही डज, ही
does the homework in the after hours. He does. वैसे लफ्ज अगर आप इन्फिनेटिव के कॉलम में देखने जाएं तो do है, do. We do our homework in the after hours. हम अपना होमवर्क यानी बाद में जो क्लास वगैरह के बाद के जो घंटे होते हैं ऑफिस वगैरह के जो बाद के घंटे होते हैं उनमें करते हैं, शाम के औकात में करते हैं दूसरे मानों में. तो उसी चीज को अगर आप किसी तीसरे शख्स की तरफ इशारा करके बताना चाहते हो कि वो ऐसे करता है तो आप क्या कहोगे? वो डू चल करके डज बन जाएगा, वो डूज नहीं है. वो गलती से आप उसको हो सकता है कभी कभार डूज पड़ जाएं, क्योंकि हम आमतौर पर गो कहा, ही गोज टू द ऑफिस एट 5 in the morning, at 6 in the morning, at 9 in the morning, ये कहते हैं आप. तो जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करने लगो तो उमूमन ये खदशा रहता है कि जैसे हमने गोज कहा वैसे ही शायद डू का डोज होगा. नहीं, डू का डज होता है. ठीक है, तो जब आप ही, शी और इट का इस्तेमाल करने लगो तब आप उमूमन इन अफआल के, इन सियग के आगे, इन सीगों के आगे आप क्या करोगे? कभी एस का, कभी ई एस का इजाफा. आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कब कब एस का और कब कब ई एस का इजाफा होता है. तो मिसाल के तौर पर ही प्रेज 6 times a day. हम उमूमन मुसलमान 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, ये जनाब तहज्जुद भी पढ़ते हैं. तो ही प्रेज PRAYS, ही प्रेज 6 times a day. या फिर she takes a shower, she takes, take नहीं, takes, she takes a shower early in the morning, she takes a shower early in the morning. तो इस हिसाब से, इस तरीके से जुमले बनते चले जाते हैं. चलिए 2 और बातें फिर इंशाअल्लाह ताला आज का दर्स खत्म करेंगे. उनमें से एक बात यह है, 2 में से एक बात मैंने शुरू में कहा था कि प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल आप आम तौर पर 2 चीजों के लिए करते हैं. एक वो जो दुनियावी या फिर आलमी तौर पर मुसल्लम हकाइक हों. मिसाल के तौर पर सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज मगरिब में डूबता है. इसको अगर आप कहते हो तो आप कैसे कहोगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट. राइज से हमने राइजेज कहा. ठीक है, द सन, क्योंकि वो द सन को जब आप हटाओगे और उसकी जगह जमीर लाओगे तो आप इट ले आओगे. तो द सन हो गया सिंगुलर. मैंने कहा था जब तक आप ही, शी, इट का इस्तेमाल कर रहे हो तब तक आप एस, वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगाओगे. तो यहां पर द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट. या फिर इसी हिसाब से द अर्थ goes round the sun. जमीन, साइंसी तहकीक है ये कि जमीन सूरज के चक्कर लगाती है. The earth goes round the sun. तो ये एक मुसल्लम हकीकत है. तो उस हिसाब से हम इन मुसल्लमा हकाइक की जब बात करते हैं तब हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. इसी हिसाब से मैंने कहा था कि जब आप आमतौर पर कोई आदतन जो चीज करते हो उसको बताना चाहते हो, उस बाबत बात करना चाहते हो, आपके ताल्लुक से हो या किसी और के ताल्लुक से, तब आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हो. यानी वी वेक अप एट 5 o'clock in the morning. वी वेक अप, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं. ये आमतौर पर होता है. आप देखें ना, गौर करके देखें, आपकी जब आदत हो जाए 5 बजे उठने की तो आप भले ही किसी दिन किसी वजह से थोड़ा सा लेट भी सोने को चले जाएं तब भी आपकी आंख अचानक 5 बजे खुल जाती है. क्यों? आपके अंदर ये आदत हो चुकी है, तो उसी हिसाब से कुछ लोगों की ये आदत होती है कि उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं. तो ही टेक्स अ कप ऑफ टी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. ही टेक्स अ कप ऑफ टी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. या फिर कुछ लोगों की ये आदत होती है कि सुबह उठते ही टहलने निकल जाते हैं. ही जॉग्स इन द पार्क. ही जॉग्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग. तो इस हिसाब से जो आदतन चीजें होती हैं, या और एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं, पीपल इन इंडिया टेक टी 2 times a day. आमतौर पर हिंदुस्तान में लोग दिन में 2 दफा चाय पीते हैं, है ना. ये आमतौर पर आदतन होता है. सुबह में एक चाय पीते हैं, फिर शाम में एक चाय पीते हैं. तो उस हिसाब से जब आदतन कोई बातें आपको बतानी हो तो आप प्रेजेंट सिंपल का सीगा इस्तेमाल करोगे. ठीक है.
लास्ट जो मैंने बात कही थी, मैंने कहा था कि दो बातें आपके सामने कहनी है, एक तो मैंने कह दी, दूसरी बात यह है कि प्रेजेंट सिंपल का एक ऐसा सीगा है, या प्रेजेंट सिंपल एक ऐसा जमाना है बल्कि, जिसमें आप उमूमन हाल के जो अल्फाज होते हैं वो इस्तेमाल करोगे। यानी अंग्रेजी में जिन्हें एडवर्ब्स कहते हैं वो यहां पर उमूमन प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होते हैं। उनकी कुछ मिसालें: यूजुअली, ऑलवेज, जनरली, समटाइम्स, रेयरली, occasionally, seldom, never, regularly। इस तरह के कुछ अल्फाज हैं जो आमतौर पर प्रेजेंट सिंपल ही में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जब आप इनको इस्तेमाल करने लगें तो होगा यह कि आपका जुमला तो शुरू होगा उन जमाइर ही से। उमूमन एक्सेप्शंस हो सकती हैं, इस्तिस्नात हो सकती हैं। उमूमन आपका जुमला फिर शुरू होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट से। फिर उसके बाद आप बजाय इसके कि वर्ब ले आओ, यहां पर दूसरी जगह पर आप ये जो अल्फाज मैंने अभी गिनाए एडवर्ब्स जिनको मैंने कहा था ये ले आओगे। जिस हिसाब से आपको जुमला बनाना हो उस हिसाब से आप उनमें से किसी एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए चलोगे। वी ऑलवेज वेक अप एट 5 in the morning। वी ऑलवेज वेक अप। शी ऑलवेज टेक्स द बस टू गो टू द ऑफिस। शी ऑलवेज टेक्स। शी जनरली, she generally comes back home late। she generally comes home late। तो इसी तरीके से आप जुमले बनाते जाओगे। जनरली हुआ, यूजुअली हुआ, ऑलवेज हुआ, समटाइम्स। we sometimes go to resorts। we sometimes go to resorts। तो इसी तरीके से आप जुमले बनाते जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपका अंग्रेजी सीखना आसान भी होता जाएगा। थोड़ी सी मेहनत यहां से, थोड़ी सी मेहनत आपकी तरफ से हो तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्द हम मंजिल मकसूद तक पहुंच पाएंगे बिइज़्निल्लाहि व तौफीक़ी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारा अंग्रेजी सीखना कार खैर बनाए और इसे हमारे अपने मीज़ान हसनात में डाल करके शुमार करे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।